जो टेरिगोमैंडिबुलर रेफे है, इट प्रेजेंट behind to the third molar teeth. This is the position. Anteriorly buccinator, posteriorly superior constrictor. ठीक है? So oblique line पे attachments anteriorly depressor labia inferioris, just posterior to it depressor anguli oris, and up to the posterior end of the third molar teeth muscle attach is the buccinator. ठीक है, ये यहाँ ये सब हम देख चुके हैं. दिस वन इज द oblique line. अब just below to this oblique line, this area is overlapped by the platysma. This area is overlapped by the platysma. देखो, this one is the oblique line. यहाँ तक oblique line. इसके नीचे this area is overlapped by the platysma. ये सब पढ़ चुके हो. platysma क्या है कि वो यहाँ पे इसको यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ रन कर रहा है. This is the platysma. ठीक है. अब this platysma is crossed by these three structures: facial artery, facial nerve. Sorry, this one is the facial artery, facial vein, and the lower branch of the facial nerve. Marginal mandibular branch of facial nerve. टोटल अभी जब फेशियल नर्व पढ़ा होगा ना, इस तरह से पांच होती है. उसमें जो ये फोर्थ वाली है वो कहाँ से, उसका नाम क्या होता है? मार्जिनल मैंडिबुलर. सो दिस ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर कम्स रिलेटेड एट दिस पॉइंट. At this area of the mandible is related with these three structures. This one is the facial marginal mandibular branch of facial nerve and facial artery. Facial artery मैंने उस दिन बताया भी था. इसी के along कैसे वाइंड होके यहाँ से ही कैसे आ जाती है, बिल्कुल फेस पे आती है, बेस ऑफ मैंडिबल पे वाइंड होके. ठीक है. और यहाँ पे कौन सी मसल का था? हम फेशियल आर्टरी कौन सी एक मसल है ना यहाँ पे, उस दिन बोला भी था, जिसको हम क्लच करते हैं, बिल्कुल टाइट होती है. कौन सी मसल थी जिसके रिलेशन में हम फेशियल आर्टरी को फील करते हैं? यहाँ पे एक बड़ी सी मसल होती है ना, अगर हम दांतों को एकदम पूरा अच्छे से दबाओ तो यहाँ पे एक मसल फील होगी हार्ड से. इस मसल का नाम क्या था? मैसेटर, है ना. तो मैसेटर एरिया, this complete lateral surface of the ramus, it gives attachment to the masseter. Here you can see this is the masseter. और बिल्कुल मैसेटर का एंटीरो इंफीरियर एंगल पे हम क्या फील करते हैं? पल्सेस ऑफ फेशियल आर्टरी. सो लेटरल सरफेस ऑफ द ramus of mandible, it gives attachment to a large muscle, masseter. And here you can see three oblique ridges. These are the intermuscular septum. कोई भी बहुत heavy muscle अगर present होती है तो उनमें कहीं भी क्या present होती है? intermuscular septum present होते हैं बहुत सारा movement कराने के लिए. तो तीन intermuscular ridges present होती है, जो हम इस पे भी, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है. इस तरह से ये जो दिख रही है, ये जो एलिवेशन से दिख रहे हैं, these are the intermuscular ridges for the attachment, or this area gives attachment to the masseter except posterior superior area. This area जहाँ पे अभी मेरा फिंगर है, except posterior superior area, because this area on the medial lateral side and also medial side in this way overlapped by a third salivary gland, another salivary gland, name is parotid gland. दो salivary gland का रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, sublingual, submandibular, and this posterior superior area of the ramus, and this area is also related with the another salivary gland, parotid gland. In this diagram you can see here, this is the parotid gland. This is the parotid gland. This one is masseter, and this one is the mandibular notch. And mandibular notch, through mandibular notch कौन सी आर्टरी और नर्व पास होती है? मेसेट्रिक आर्टरी, मेसेट्रिक वेसल्स एंड नर्व, मेसेट्रिक वेसल्स एंड मेसेट्रिक नर्व्स. ठीक है. ये सब कुछ इस पे जो कुछ भी दिख रहा है सब समझ आ गया है. अभी हम, दिस वन इज द एंगल ऑफ मैंडिबल, and this angle of mandible, it gives attachment to the stylomandibular ligament. इसी
तरह के 2-3 नाम आएंगे, एक स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, अभी एक और आएगा स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट, उसके अलावा एक और है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये 3 मैंडिबुल जैसे नाम से है, तीनों का अटैचमेंट अलग अलग बता रही हूँ। स्टाइलोमैंडिबुलर कहाँ पे अटैच हो रहा है? एंगल ऑफ मैंडिबल पे। अब हम मीडियल सरफेस पे देखेंगे तो वहां पे बाकी के अटैचमेंट्स हैं। अब ये लेटरल सरफेस सबको समझ आ गया है, सारे अटैचमेंट्स। अब ये क्या है? दिस वन इज द कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस एंड दिस वन इज द कोरोनॉइड प्रोसेस। दिस कोरोनॉइड प्रोसेस slide on the lateral surface, complete tip along with its anterior border और पूरी medial surface, it gives attachment to the very important muscle temporalis. So coronoid process mainly related with the which muscle? Temporalis. Tip, anterior border, slight part of the lateral surface and complete part of the medial surface. अब तुम लेटरल वेट पहले लेटरल ही देख लो पूरा, ठीक है? ये लेटरल सरफेस, ठीक है? समझ आ गया सबको? अब हम जो लिखा था वो एक बार मैं रीड कर देती हूँ ताकि तुम लोग कुछ नहीं समझ में आया तो देख लो। फ्रॉम द oblique line buccinator and in front of this origin there is present depressor levi inferioris and depressor anguli oris below the mental foramen. From the incisive fossa, origin of mentalis and orbicularis oris. Whole of the lateral surface except posterior superior part insertion किसका है? Masseter. Posterior superior part किससे रिलेटेड है? पैरोटिड ग्लैंड से। ये हम बाद में भी दोनों प्रोसेसेस अभी नहीं पढ़े, वो बाद में देखेंगे। Part of the both the inner and outer surface below to the alveolar margins are covered by mucous membrane. Not so important. Platysma is inserted into the lower border and the deep cervical fascia. ये अब lower border में दोबारा से बताऊंगी, चलो यहीं सुन लो। The deep cervical fascia पढ़ चुके हो, is attached to the whole length of the lower border. डीप सर्वाइकल फेशिया जो इन्वेस्टिंग लेयर है डीप सर्वाइकल फेशिया की, कहाँ पे अटैच होती है? जैसे ही इंफीरियर बॉर्डर के पास पहुंचते इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स एंड इट कवर्स द व्हिच ग्लैंड? सबमैंडिबुलर ग्लैंड. फर्स्ट इट रीचेस हियर, देन इट स्प्लिट, it attached with the inferior border, then it's split into 2 parts. Again it's covered the submandibular gland. One part of this is attached to the inferior border and second part is attached with the mylohyoid line. So the investing layer of the fascia is attached like this, split into 2 parts. One layer is attached with the mylohyoid line and second layer is attached with the inferior border of the mandible, the base of the mandible. इस डायग्राम में भी कुछ मसल अटैचमेंट्स हैं. This one is the buccinator, this one is masseter, this one is the temporalis, mentalis. अलग अलग बुक के डायग्राम इसलिए डाले ताकि बार बार रिवाइज हो जाए, समझ में आए कि क्या कहना चाह रहे हैं. कि उसमें कुछ कई बार हम जब डायग्राम चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं है. इसलिए अगर पता है पोजीशन तो सब सारी मसल समझ में आएंगी. दिस वन इज प्लेटिज्मा, दिस वन इज मेंटल फोरामेन, दिस इज मेंटालिस, depressor levi inferioris, this one is anguli oris, this one is buccinator. ठीक है. Now on the medial surface. मीडियल सरफेस में हमने क्या देखा था? ट्यूबरकल्स, अबव साइड जीनियोग्लॉसस, पहले बताया था टंग ऊपर है तो ग्लॉसस ऊपर होगी, हायोइड नीचे, तो लोअर ट्यूबरकल पे कौन सी होगी? जीनियो हायोइड. In the inferior border there is present digastric fossa and in this digastric fossa it gives attachment to the anterior belly of digastric. In digastric fossa, anterior belly of digastric. This is sublingual fossa, sublingual gland. This is submandibular fossa, submandibular gland, and you can see here this is the loop of facial artery. ठीक है. facial artery ये wind हो गई इसके साथ और कहाँ पे चली गई? फेस पे. ठीक है.
ये हम पढ़ ही चुके हैं. दिस वन इज द माइलोहायोइड. दिस वन इज द मसल. कौन से अटैच है? माइलोहायोइड लाइन. सो मसल इज माइलोहायोइड. अभी जो एक चीज हम अभी तक नहीं देखा है, हाँ, एक बार दोबारा से देखते हैं. रेमस. रेमस का हम लेटरल सरफेस पूरा देख चुके हैं. अब हम देखते हैं इसका मीडियल सरफेस. दिस वन इज द मीडियल सरफेस ऑफ द रेमस. जनरल फीचर्स of the medial surface of the ramus. In the medial surface of the ramus, you can see here a foramen. You can see here a foramen, and this foramen is called mandibular foramen. This foramen, and this foramen in the internal inside of the mandible, it leads in a mandibular canal. There is a mandibular canal which runs inside the mandible, and on reaching to the premolar teeth, this mandibular canal divide into two canal, mental canal and incisive canal. Mental canal opens through the mental foramen, or you can say this foramen and this foramen on this side. अगर कौन सा फोरामेन? ये वाला, ये देखो, ये दिख रहा है सबको. दिस इज द मैंडिबुलर फोरामेन. इसके अंदर से ही ये इसके अंदर प्रेजेंट है कौन सी? पूरी मैंडिबुलर कैनाल. फिर आगे जाके डिवाइड हो जाती है टू कैनाल्स में, एक मेंटल कैनाल और एक इंसिसिव कैनाल. इंसिसिव कैनाल जो है वो इंसाइजर्स के पास आके ओपन हो जाती है, और मेंटल कैनाल कहाँ ओपन हो जाएगी? थ्रू दी मेंटल फोरामेन. और ये सभी कैनाल कहाँ रन कर रही है? इनसाइड द मैंडिबल. ठीक है. On the end, this is the mandibular foramen. Anteromedial margin of this mental foramen, there is an elevation, and this elevation is called lingula. In this diagram, you can see this foramen is mandibular foramen, and here there is an elevation. You can see this elevation is called lingula. This elevation is called lingula. This one is mandibular foramen. And just below to this mandibular foramen, inside the mandible, it leads mandibular canal, but outside there is present a groove, and this groove is called mylohyoid groove. And this groove carries the mylohyoid nerve and vessels. This is mylohyoid groove. This one you can see here. The groove-like structure, you can see this groove-like structure. This one is mylohyoid groove. This is mylohyoid groove. कैनाल अंदर है बोन के. ठीक है. मैंडिबुलर कैनाल. सिर्फ क्या दिखता है? मैंडिबुलर फोरामेन. यहाँ पे एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड लिंगुला. और ये जो ग्रूव है, दैट ग्रूव इज कॉल्ड mylohyoid groove. Just beneath, just below and behind this area, below and behind the mylohyoid groove, here this rough area, you can see there are some bony ridges also, 3 to 4. This area, very important area. This area gives insertion, gives attachment to a very important muscle, medial pterygoid. This area gives attachment to the medial pterygoid muscle, medial pterygoid. In this, you can see here, this area is medial pterygoid. So in the medial surface of this ramus, you can see mandibular foramen, which leads inside the mandibular canal. Outside there is present a groove. This groove is called mylohyoid groove. Beneath or below or behind this area is called for the attachment of the medial pterygoid. In the ये हम देख चुके हैं. इसमें पूरे पे कौन सी मसल अटैच है? टेम्पोरालिस. अब आते हैं कॉन्डाइलर प्रोसेस पे. कॉन्डाइलर प्रोसेस, it has oval shaped head and just along to it a constricted neck. You can see here. This one is oval shaped head and a constricted neck. Because this oval shape, the axis of the ramus, the axis of this condyloid, head of the condyloid process is like this, or you can say it is perpendicular to the axis of the ramus.
अगर हम रेमस का एक्सेस देखें तो कैसे होगा, ये वाला रेमस है ना, और इसी के साथ राइट एंगल पे होगा किसका, क्योंकि ओवल शेप है कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस, इस तरह से। तो इट फॉर्म्स अ 90 डिग्री एंगल विद द एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ द head of the condyloid process forms 90 degree angle with the axis of the ramus, ठीक है। this one is the head, और head पे क्या अटैच है, फाइब्रोकार्टिलेज, इससे ज्वाइन कर रहा है मैंडिबुलर फोसा ऑफ द टेम्पोरल बोन, क्या बना रहा है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। नेक, उसके बाद आता है नेक। नेक पे अटैचमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 अटैचमेंट्स है नेक के। सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि साइनोवियल जॉइंट है, तो नेक पे सबसे पहले क्या अटैच होगा, कैप्सूल ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। फर्स्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का कैप्सूल। ऑन द एंटीरोमीडियल सरफेस ऑफ द नेक, जहाँ पे अभी फिंगर है, देयर इज प्रेजेंट अ डिप्रेशन एंड दिस एरिया इज कॉल्ड टेरिगॉइड फोविया and it receives the insertion of lateral pterygoid. This, you can see this depression is called pterygoid fovea, VEA, pterygoid fovea, and it receives insertion of lateral pterygoid. It present anteromedial. If you hold this in the anatomical position, so anteromedially, there is present the pterygoid fovea. Medial, on just medial surface of the neck, medial part of the neck, it is related with the temporomandibular ligament. And lateral part of the neck and posterior part of the neck, lateral part and posterior part of the neck is related with, covered by the temporomandibular ligament, and the medial part of this neck is related with auriculotemporal nerve. दोबारा से एक बार देखिए, थोड़ा सा टफ है नेक का अटैचमेंट्स। ये कॉन्स्ट्रिक्टेड नेक, चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट। एंटीरोमीडियली pterygoid fovea receives insertion of pterygoid muscle. एंटीरोमीडियली, फिर जो मीडियल पार्ट बचा, दैट इज रिलेटेड विद ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, और बाकी पोस्टीरियर पार्ट और पूरा लेटरल पार्ट, दिस पूरा पार्ट जो है नेक का, इट इज रिलेटेड विद टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट. ऑन द लिंगुला गिव्स अटैचमेंट टू द स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. देखो लिगामेंट के नाम से टोटल हम 3 पढ़े हैं, स्टाइलोमैंडिबुलर, स्फीनोमैंडिबुलर एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर. ठीक, स्टाइलोमैंडिबुलर अटैच विद द नेक ऑफ द मैंडिबल, स्फीनोमैंडिबुलर अटैच विद द लिंगुला, टेम्पोरोमैंडिबुलर इज अटैच विद द लेटरल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक. एक और पढ़ा था टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, दैट इज अटैच्ड बिहाइंड टू द थर्ड मोलर टीथ. समझ आया, चारों चीजें एक साथ. एंगल ऑफ मैंडिबल स्टाइलोमैंडिबुलर, लिंगुला स्फीनोमैंडिबुलर, नेक ऑफ द मैंडिबल क्या प्रेजेंट होगा, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, एंड बिहाइंड द थर्ड मोलर टेरिगोमैंडिबुलर रेफे. दिस इज द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे. अब रिलेशन एक बार मीडियल सरफेस पे इस सब बता चुकी हूँ, दोबारा से देखो. सब एक बार रीड कर देती हूँ. दिस इज डाइगैस्ट्रिक फोसा. क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर वैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, जीनियल ट्यूबरकल्स, जीनियोग्लॉसस एंड जीनियोहायोइड, माइलोहायोइड लाइन, माइलोहायोइड मसल. एरिया अबव द पोस्टीरियर एंड ऑफ द माइलोहायोइड लाइन क्या प्रेजेंट था, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, जो कि कहाँ तक रीच कर रहा था, अप टू द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे. दिस इज द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे इमीडिएटली बिहाइंड द थर्ड मोलर टीथ, in continuation with the origin of superior constrictor. एक तरफ superior constrictor and anteriorly buccinator. In this diagram, this is the lingula and attachment is the sphenomandibular ligament. In the mandibular foramen, the nerve and vessels enter is the inferior alveolar nerve and vessels.
inferior alveolar nerve and vessels enter in this mandibular canal. और अंदर ही अंदर क्या मसल किस किस अंदर रन करती है, मैंडिबल के अंदर, फिर वहां पे डिवाइड हो जाती है टू कैनाल्स में, मेंटल कैनाल एंड इंसिसिव कैनाल. उसी नाम से ये ब्रांचेस भी डिवाइड होके उसी कैनाल के अलोंग जाके इनको रन करती है. और जो मेंटल कैनाल से बाहर आती है उन्हें बोलते हैं मेंटल नर्व एंड वेसल्स. ठीक है. और ये जो ग्रूव है, दिस ग्रूव इज कॉल्ड माइलोहायोइड ग्रूव. इट आल्सो लॉजेस द सेम नेम, माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स. And also this border is related with parotid on both sides, lateral side and medial side, parotid. And I already told you that the just related to the neck of the mandible, temporal jo external carotid divide into two terminal branch. Maxillary artery, first part of maxillary artery is related with this neck of the mandible. This is lateral pterygoid attached in the fovea, pterygoid fovea in the head. Below and behind the mylohyoid groove, medial pterygoid muscle, apex of the coronoid process temporalis, in the pterygoid fovea, insertion of lateral pterygoid, sphenomandibular ligament attached in the lingula. ठीक है, ये अलग से डायग्राम्स में थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए. दिस वन इज जीनियो ग्लॉसस, this one is geniohyoid, this one is anterior belly of digastric, this is mylohyoid, this one is mylohyoid, this is superior constrictor, this one is the pterygomandibular raphe, this is temporalis. Temporalis covered the complete medial surface but slightly on the lateral surface. This is fovea, कौन सी मसल है, lateral pterygoid. This is mylohyoid groove, this one is mylohyoid groove, this one is mandibular foramen, this one is lingula. Lingula पे क्या अटैच था, sphenomandibular ligament. And this is medial pterygoid, this is the position of medial pterygoid. अब नर्व्स, इसी से देखो जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कौन कौन सी नर्व मैंडिबल के रिलेशन में आती है. कौन कौन सी नर्व आ गई रिलेशन में, ऑरिकुलोटेम्पोरल, मेसेट्रिक, इंफीरियर एल्वेओलर, माइलोहायोइड, यहाँ पे कौन सी थी, मार्जिनल मैंडिबुलर, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लिंगुअल नर्व. दिस इज लिंगुअल नर्व. सो लिंगुअल नर्व प्रेजेंट or related with the internal surface present between the second, third molar teeth and the posterior end of the mylohyoid. Posterior end of the mylohyoid and third और molar, second और third molar teeth, इनके बीच में जो space है, this space is related with the which nerve? Lingual nerve. तो ये सारी नर्व्स अगेन दोबारा से एक बार देखो कौन कौन सी नर्व रिलेशन में आ रही हैं. ऑरिकुलोटेम्पोरल कहाँ पे रिलेशन में आ रही थी, ऑन द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक ऑफ मैंडिबल, नेक ऑफ द कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस. ठीक है. दिस वन इज मेसेट्रिक नर्व एंड वेसल्स, योर मेसेट्रिक नर्व. inferior alveolar nerve is enter in the mandibular canal through the mandibular foramen. Before entering it, it gives a branch mylohyoid nerve which lies in the mylohyoid groove. Mylohyoid groove. This is superior constrictor, pterygomandibular raphe. 3 salivary glands comes in the relation with the mandible. कौन सी हो गई, parotid, submandibular and sublingual. आर्टरी कौन कौन सी रिलेशन में आ रही है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी, उसी की ब्रांच मेसेट्रिक ब्रांच, इंफीरियर एल्वेओलर ब्रांच, माइलोहायोइड, ये कौन सी होगी, माइलोहायोइड ब्रांच एंड द फेशियल आर्टरी. ब्लड सप्लाई जो भी नर्व रिलेशन में आ रही है वही मेन ब्लड सप्लाई होती है. तो मेन ब्लड सप्लाई जो है वो कौन सी कर रही है, इंफीरियर एल्वेओलर आर्टरी, क्योंकि इंफीरियर एल्वेओलर आर्टरी ये माइलोहायोइड ब्रांच दे रही है. ठीक है. तो मेन ब्रांच जो है वो माइलोहायोइड आर्टरी. नर्व कौन कौन सी रिलेशन में आ रही है, उसी से नर्व सप्लाई है, इंफीरियर एल्वेओलर नर्व, लिंगुअल नर्व एंड बक्कल नर्व.
सिर्फ मैंने इसलिए डाला है ताकि तुम्हें ये देखो कि कैसे एंटर हो रही है। ये देखो, ये हमें क्या दिख रहा था, मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। और मैंडिबुलर फोरामेन के अंदर अंदर क्या चल रन कर रही थी, मैंडिबुलर कैनाल। तो अगर हम मैंडिबुलर को कट करें तो उसके अंदर हमें ये कैनाल दिखेगी, तो दिस इज कॉल्ड द मैंडिबुलर कैनाल। तो inferior alveolar nerve through the mandibular foramen enter in the mandible, inside the mandible, and further it divide into incisive and the mental foramen. So this is mental canal, this is incisive canal, और इन्हीं के नाम से ये nerves divide हो जाती हैं। Age changes जो पूछा जाता है mandible में, एज रिलेटेड चेंजेस देख लीजिए एट बर्थ। मैं 3 चीजों में तुम्हें एज रिलेटेड चेंजेस देखना है। फर्स्ट इज द मेंटल फोरामेन एंड मैंडिबुलर कैनाल। एट बर्थ क्या प्रेजेंट होता है, जो मेंटल फोरामेन एंड मैंडिबुलर कैनाल लाई क्लोज टू इट्स लोअर बॉर्डर। एंगल ऑफ मैंडिबल इज 140 डिग्री एंड द कोरोनॉइड प्रोसेस लाइज हायर लेवल देन द कॉन्डाइलर प्रोसेस। You can see here at birth angle is 140, mental foramen and mandibular canal both lies near to the base of mandible. In adult, mental foramen lies midway between the upper and lower border of bone. The angle of mandible is about 10 to 15 degree, and due to the vertical growth the condylar process now comes to lie higher than the coronoid process. यहाँ पे ये प्रोसेस हाई है, इसमें क्या है, कॉन्डाइलर प्रोसेस ज्यादा एलिवेटेड हो जाता है। ये मेंटल फोरामेन कहाँ पे आ गया, मिडवे में। एंड इन ओल्ड एज मेंटल फोरामेन कम्स नियरर टू द अपर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल। यहाँ लोअर बॉर्डर के साथ एडल्ट में, बर्थ पे एडल्ट में मिड पे आ गया, और ओल्ड एज में अपर बॉर्डर के पास। ये मैंडिबुलर कैनाल का पोजीशन है, पहले बिल्कुल टुवर्ड्स द लोअर बॉर्डर, देन मिडिल एंड देन कम्स टू द नियर द अपर बॉर्डर। इन 3 चीजों में एंगल पता होना चाहिए, मेंटल फोरामेन, मैंडिबुलर कैनाल एंड कॉन्डाइलर प्रोसेस। और कॉन्डाइलर प्रोसेस कौन पहले, कौन ऊपर है, बाद में कौन है, ठीक है। इन सब चीजों के एज रिलेटेड चेंजेस पता होना चाहिए। अप्लाइड बाद में, अभी ये लास्ट में कुछ डाला है तो ये तुम एक बार देख लो, आइडेंटिफाई करने का कोशिश। क्या चीज है ये, क्या चीज को कलर किया है, मैंडिबुलर फोसा, सॉरी सब मैंडिबुलर फोसा, ठीक है। ये क्या चीज है, कौन सी मसल प्रेजेंट है यहाँ पे, मीडियल टेरिगॉइड। मैसेटर बाहर होती है, इनसाइड है, ये इनर सरफेस है। कौन सी मसल है, मीडियल टेरिगॉइड। ये जो हाईलाइटेड एरिया है कौन सा है, ग्रूव जैसा है ना, कौन सी ग्रूव है, माइलोहायोइड ग्रूव। दिस इज द एंगल ऑफ मैंडिबल, दिस वन इज द एंगल ऑफ मैंडिबल। ये कौन सा फोसा है, सबलिंगुअल फोसा। कौन सा फोसा है, डायगैस्ट्रिक। ये क्या चीज है हाईलाइटेड जो है, हेड। ये क्या है, नेक, नेक ऑफ कॉन्डाइलॉइड प्रोसेस। दिस वन इज कोरोनॉइड प्रोसेस। ये कौन सा एरिया है, टेरिगॉइड फोविया। ये क्या है, मेसेट्रिक, सॉरी मैंडिबुलर नॉच। ये क्या है, मैंडिबुलर फोरामेन। क्या चीज है, कौन सी मसल है, बक्सिनेटर, सॉरी सॉरी सॉरी, वो कौन सी मसल है, माइलोहायोइड। दिस वन इज माइलोहायोइड, इनर सरफेस है। ये सेम आउटर सरफेस है, कौन सी मसल है, बक्सिनेटर। बक्सिनेटर। ये क्या है, बॉडी बताइए। ये मैसेटर, थोड़ा एरिया बड़ा होता है बस, मेनली ये कौन सा है, मैसेटर। ये दिस इज द पोजीशन ऑफ मैसेटर, you can see here, this is the position of masseter. This one is medial pterygoid, one is medial pterygoid। और अप्लाइड देख लेना, टाइम थोड़ा सा, बस
ना याद रखिए जो पैरासिम्फाइजियल रीजन जो होता है वो मैंडिबल का, वो कौन सा होता है, जो यहाँ पे इंसिसिव फोसा भी प्रेजेंट है, इसमें देखो यहाँ पे इंसिसिव फोसा है और साथ में मैंडिबुलर फोरामेन भी है। तो दो फोसा की वजह से वैसी थोड़ी थिन हो जाती है और एक फोरामेन भी है। तो दिस एरिया जो होता है इसे बोलते हैं पैरासिम्फाइजियल एरिया। तो यहाँ से ये मैंडिबल थोड़ा वीक होती है, तो जो फ्रैक्चर होता है सबसे कॉमन होता है वो इसी चीज का होता है, पैरासिम्फाइजियल फ्रैक्चर। So the parasymphysial fracture. The body of mandible is considerably thicker than the ramus. Body thicker, ज़्यादा thicker है, and the junction between these two portions constitute a line of structural weakness. ये बाद में एक बार थोड़ा सा रीड कर लेना, समझ आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बस इसका ये याद रखिए कि जो नेक है ना, इसका जो नेक, अगर कोई सामने से आपको मार रहा है, कोई सामने से, तो क्या होता है कि नेक जो होती है वो बहुत ही क्या थिन होती है। द स्लेंडर नेक ऑफ मैंडिबुलर कॉन्डाइल्स रेंडर्स इट पर्टिकुलरली लायबल टू फ्रैक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट वायलेंस अप्लाइड टू द चिन। तो जैसे इसको सामने से किसी ने हिट किया तो क्या होता है, मैंडिबल की जो नेक है वो टूट जाती है। तो इससे क्या प्रिवेंट इंजरी, पहले वो फ्रैक्चर हो जाएगी, इसलिए किसको प्रिवेंट करती है, इंजरी टू दी मिडिल क्रेनियल फोसा। ठीक है, दिस एक्ट as a safety mechanism as a fracture of neck of the condyles prevent injury to the middle cranial fossa. ठीक है, अगर डायरेक्ट ब्लो चिन पे हो रहा है तो दोनों तरफ की फ्रैक्चर हो सकती है, और अगर एक तरफ से फ्लो किया तो अपोजिट साइड का नेक और जिस साइड पे हिट किया है उसी साइड का कौन सा फ्रैक्चर होने के चांस ज्यादा रहते हैं, पैरासिम्फाइजियल रीजन के, क्योंकि पैरासिम्फाइजियल रीजन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है बाकी बॉडी के हिसाब से। ठीक है, एक बार बुक से पढ़ लेना, फिर भी किसी को ये देख लो पैरासिम्फाइजियल फ्रैक्चर। ठीक है, और नेक सबसे इजीली टूटी जाती है, सबसे पतली सी है। ठीक है, फर्स्ट नेक है, पैरासिम्फाइजियल फ्रैक्चर बहुत कॉमनली होता है। वैसे बॉडी क्योंकि ज्यादा थिक होती है इसलिए रैमस पे ज्यादा ये एंगल ऑफ मैंडिबल से फ्रैक्चर, लाइन ऑफ फ्रैक्चर्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि अगर कहाँ हिट करेंगे तो कौन सा लगेगा। बस ये दो चार चीजें पढ़ लेना, कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। चलिए बंद कर दीजिए भैया, हो गया। पढ़ लेना एक बार मैंडिबल बुक से, फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लेना। ठीक है, कर दीजिए, मुझे लग रहा है बहुत लेट हो गए। आगे समझ में